So today we will start with the new basic routing and okay, yes, that's great. So guys, let's start. What does it mean routing? Routing का मतलब हमारे पास क्या होता है? Routing means सिंपल मैनर में अगर हम लोग बात करें, राउटिंग का मतलब हमारे पास होता है शेयरिंग दी रूट्स और बिल्डिंग दी रूट्स. ठीक है. So I hope that you all can see the screen because the screen is visible right now. Okay, fine. So, what is routing? Routing means selecting the best path. Okay, so how could we select the best path? It's very simple to understand that earlier we were able to simply communicate if the devices are in the same network, but when the problem comes with the different networks. For example, if I have a network of class C 192.168 1.0 and if I have another network of class C or class A or class B, any class, so if the both networks are different, there cannot be a communication. In that situation, we have to do a routing. Okay. Routing is in a very simple manner. We can say that routing is the process of selecting the best path. क्योंकि जब different networks मेरे पास होंगे तो we have to use the term routing for them because it's not possible that two different networks can communicate directly. So that's why we can select the best path according to there are two ways statically and dynamically. Okay. So the very first point of routing is it is clear that we are going to select the best path and the next point is that we can select the best path according to ways statically and dynamically. Okay, no problem. Routing table. Actually, there are few terms. There are few terms like we can say the routing table, mm, default gateway, best path, and hop. Two type of routes or networks we have. It could be local and the second is remote. Which terms are these are some terms that are going to be discussed in this session, so we must know about all of them. Routing table is a table that is maintained by a router. Okay, routing की हम लोग बात करें, we are talking about routing. So obviously we are going to use a device named router. So router is a device basically known as layer 3 device. And what is the use of router? Router is used to communicate between two or more different networks. So simple सा concept है. If I have two different networks or more than two different networks, I have to use a router if I want to make a communication between them. So okay,
Router is a layer 3 device that means definitely there will be IP protocol that could run on router. The second thing, that router will work on layer 3, so definitely IP protocol is going to be used on router. So what router does, router simply maintain a routing table. Okay, a routing table in which router maintain or contain the information of the connected networks. ओके, व्हाट डज इट मीन सर? कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब हुआ कि मेरे राउटर या मेरे मेरे नेटवर्किंग डिवाइस से जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है, इट डजंट मैटर दैट व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज, इट कुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, इट कुड बी रिमोटली कनेक्टेड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी नेटवर्क का लिंक सीधा सीधा मेरे राउटर से जाके कनेक्ट हो रहा हो, या फिर हो सकता है किसी नेटवर्क का लिंक मेरे राउटर से ना होकर के किसी और राउटर से कनेक्ट होकर के फिर मेरे पास आ रहा हो। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी नेटवर्क है, वो सब की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? राउटिंग टेबल में स्टोर होगी। ठीक है, वी विल look at the table. I'll show you that brief introduction of the table, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा मैं आपको वो। तो राउटिंग टेबल के अंदर हम हमारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। देयर मे बी टू और मोर पाथ टू रीच एट दैट सिंगल डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर मुझे, इफ आई एम लिविंग इन जयपुर एंड आई वांट टू गो टू अजमेर, so maybe I could have two or more ways to reach अजमेर। ओके, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि यार मैं किसी सिटी में रह रहा हूँ, मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है, वहाँ जाने के मेरे पास दो से तीन रास्ते हो सकते हैं। तो वो दो से तीन रास्ते मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरे राउटिंग की राउटिंग टेबल में मिलेंगे ऑब्वियसली। सो द बेस्ट पाथ that is going to be used to go through the network or to reach the destination, that process will be done by routing। okay, so हम लोग बेस्ट पाथ चूज करेंगे, वो राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क्स हैं एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेट्स से वहाँ पर चार मेरे पास पाथ मेरे पास अवेलेबल हैं, चार रास्ते मेरे पास अवेलेबल हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के, तो उनमें से जो बेस्ट होगा वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देर आर certain ways to calculate the best path actually। अभी हाउ कुड आई डिसाइड कि सर ये वाला रास्ता बेहतर होगा कि सर वो वाला रास्ता बेहतर होगा? सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स of the path that should be calculated and that should be mentioned while we are working on the best path। so हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के कैलकुलेट करके देखते हैं कि सर इनमें से कौन सा बेस्ट पाथ है, वो हम वहाँ काम करते हैं। एक और टर्म है यहाँ पर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कहने को अगर हम कहें तो, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए। अब कैसे हम लोग कहें कि सर मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फॉर एग्जांपल देर आर सम राउटिंग प्रोटोकॉल जिनका इस्तेमाल करके हम राउटिंग करवाते हैं। तो वहाँ क्या सीन होता है कि कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि सर मान लीजिए कि मेरे एक रास्ते से दूसरे डेस्टिनेशन, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बीच में एक रास्ते पर तो तीन राउटर्स आ रहे हैं और एक पर दो राउटर्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सर जहाँ दो राउटर्स आ रहे होंगे मैं उस रास्ते से जाऊंगा क्योंकि वो रास्ता मेरे लिए शॉर्ट है। So I will choose that path because that path makes the reachability easier because there are only two routers। So वो मेरा बेस्ट पाथ होगा। So number of hop, hop that means the devices, the networking devices, the routers basically। hop का मतलब routers से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉप हमने नोट किया है, हॉप मीन्स दी राउटर, द राउटर दैट इज नेक्स्ट हॉप, दैट मीन्स नेक्स्ट राउटर टू माय राउटर टू माय डिवाइस। मेरे ऑफिस का राउटर फॉर एग्जांपल, अभी हम इंटरनेट चला रहे हैं ऑफिस में बैठ करके, तो ऑफिस का जो राउटर है हमारा जहाँ से मुझे इंटरनेट मिल रहा है, वो एक राउटर है। उसका नेक्स्ट हॉप मतलब उसका जो नेक्स्ट पड़ोसी है, जो नेक्स्ट इससे कनेक्टेड राउटर है, वो हमारा नेक्स्ट हॉप होगा, फिर नेक्स्ट हॉप, फिर नेक्स्ट हॉप। तो हॉप मीन्स दी राउटर। ठीक है, टाइप ऑफ राउटर्स रूट्स और नेटवर्क्स वी हैव लोकल एंड रिमोट। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, हमारी राउटिंग टेबल में ना हमने हमारे नेटवर्क्स को लोकल रिमोट नेटवर्क्स के तौर पे रखा है। लोकल नेटवर्क्स वो नेटवर्क होते हैं जो मेरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये चीज़ गाइस ध्यान रखना, लोकल नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो मेरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं।
रिमोट नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं which are not directly connected to my device, to my router. Okay, डायरेक्टली लिंक कनेक्टेड नहीं है मेरे राउटर से, यस नो डाउट मेरे राउटर से कनेक्टेड है बट डायरेक्टली नहीं है, तो वो होते हैं रिमोट नेटवर्क। इंफॉर्मेशन दोनों में नहीं है हमारे राउटर के अंदर, दोनों टाइप के नेटवर्क मिलने वाले हैं। वी विल सी दैट हाउ इट लुक्स एंड व्हाट डज इट मीन कि दो टाइप के नेटवर्क हैं, हाउ कुड वी आइडेंटिफाई। So there are two methods to select the best path, the statically and dynamically. So there are two type of routings we can say, static routing and dynamic routing. Okay, and the next we will see, okay, the next routing table structure. In routing table structure, स्टोर्ड इन रैम, बेसिकली राउटिंग टेबल राउटर पे कहाँ होती है, राउटर के रैम में होती है। देखो राउटर में कुछ 4 से 5 टाइप की मेमोरीज लगी होती हैं। अगर हम राउटर का हम लोग डिटेल चैप्टर आएगा हमारे पास, हम राउटर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ राउटर एंड ऑल। तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि राउटर में रैम होती है, रोम होती है, एनवी रैम होती है, फ्लैश होती है। तो यस, हमारे पास रैम है जिसके अंदर राउटर की राउटिंग टेबल स्टोर होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। मैंने कहा था लोकल और रिमोट नेटवर्क। तो लोकल नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस occurs when a device is connected to another router interface। राउटर इंटरफेस बोले तो क्या, राउटर इंटरफेस मतलब, तो गाइस ऐसे समझिए, लेट मी डू वन थिंग। Wait for a minute. Okay, no problem. Now we can continue with this. Here we are. So, okay, if I simply say that what I want to show you, I want to show the routers. So, guys, as समझ लीजिए, this is a router. Okay, अब क्योंकि राउटर के इंटरफेस की हम बात करें, राउटर में जो इंटरफेस होते हैं, फॉर एग्जांपल राउटर के पास 5 यूनिट वाले इंटरफेस होते हैं, तो जिनसे मेरा स्विच कनेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं हमारे ऑफिस में भी स्विच लगा होता है जिनसे मेरा राउटर कनेक्टेड होता है, और उस स्विच से हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स लगे होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शंस होंगे हमारे पास। एंड इफ आई सी दैट ये मेरे पास एक राउटर है, तो यस, दो सेम टाइप ऑफ डिवाइस की अगर मैं बात करूं, तो हाँ मेरे पास जो अगला राउटर है वो भी नेटवर्किंग डिवाइस है। तो राउटर और राउटर के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन अगर आप लोगों को याद है थोड़ा सा, कैसी केबल हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को याद आएगा, हम यहाँ क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल करने वाले हैं। आई हैव शोन this cable while I show you the practical of IP addressing. I show you the type of cable we are going to use. And yes, okay, so today is waiting lobby. So yes, राउटिंग टेबल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास these are the devices। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है अगर दो बंदे आपस में बात करना चाहते हैं और दोनों अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी, इंफॉर्मेशन आने वाली है सर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की। दिस occurs when a device is connected to another router interface। फॉर एग्जांपल
मेरा राउटर है ये, ठीक है, दिस इज माय राउटर एंड इट हैज टू इंटरफेस दैट इज कनेक्टेड। एक इस राउटर का वो इंटरफेस, इंटरफेस मीन्स वो पोर्ट, वो वो पोर्ट जिसमें हम लोगों ने केबल इंजेक्ट किया है, केबल हम लोगों ने प्लग किया है, तो केबल जहाँ से लगा वो एक इंटरफेस है, दैट इज द इंटरफेस। यहाँ हम लोग फास्ट ईथरनेट इंटरफेस को या फिर ईथरनेट इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर दिस वी हैव एन अनदर वन, ओके, मेरे पास दूसरा भी है, दूसरा इंटरफेस भी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हो, ये इंटरफेस भी है जिसपे एक नेटवर्क लगा हुआ है। देखो, ये बात हम अपने पल्ले बांध लें कि इफ आई वांट टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस, गाइस बिटवीन टू डिवाइस का मतलब समझ लीजिएगा, दो डिवाइस मतलब दो डिवाइस मतलब कि ये एक राउटर है, ये एक राउटर है और दोनों नेटवर्किंग डिवाइस है। इफ आई वांट टू मेक communication between two devices, I have to assign them into a network. First and very important concept. If I want to make communication between two devices, doesn't matter whether these two devices are two computers, two routers, two switches, router and computers, computer and computers, doesn't matter. If I want to make a communication between them, I have to assign them into a network. And the first and very important point is that if two devices want to communicate, they must have इन दी सेम नेटवर्क। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। इफ आई वांट टू सी माय राउटिंग टेबल, I can use the command. The command is show IP route. I'll demonstrate you how it works, but yes, this is the command that is basically used to see the routing table. Okay, then the next routing table structure. Adding a connected network to the routing table. Okay, guys, I hope that you all can see the diagram. And here the diagram states that we have a router. This one is a router. Okay, let me. So this is a router. Okay, this is another router. This is a device PC. This is a switch, and now I have another PC. Okay, look, we will see this, we will try to understand what is happening here. And okay, if all guys can see, this is a switch and this is a PC, and like, look, we can see that now it is an example of our office network. So if I try to understand this, I can take this R1 as my office router जहाँ से मुझे इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप कि मेरे कंप्यूटर, मेरे घर में जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन मैं ले रखा है मैंने, मेरे पास हो सकता है कोई डोंगल है या फिर मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो देयर मस्ट बी अ राउटर, देयर मस्ट बी अ मॉडेम, अ राउटर, ओके, मॉडेम कम राउटर, सो दैट इज R1 फॉर मी। सो R1 के अंडर में, R1 ये मेरा राउटर है और इसके अंडर में ये जो पूरा नेटवर्क आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा नेटवर्क है, आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, 192.168.1.0/24। This is a network. Okay. This network is the local network. Remember this thing. This network is a local network for R1. R1 के पास कितने लोकल नेटवर्क है सर? डेफिनेटली देयर आर टू लोकल नेटवर्क, क्योंकि हमने लोकल नेटवर्क की या डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की जो डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि सर वो नेटवर्क जो मेरे राउटर के इंटरफेस से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, तो राउटर का एक इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0, जिससे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया और स्विच से मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट के लिए एक डिवाइस है, पीसी 1 2 3 4, 10 पीसी लगे होंगे और 10 के 10 पीसी जो है वो मेरे किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली स्विच के जरिए होते हुए राउटर से कनेक्टेड है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू R1। That is my local network. First point, how to identify the network.
whether it's local and remote network. So the very first and important thing that we have to see the length first. We have to identify the length. So मेरे router R1 को I simply assume that R1 is my office router. That means it's my end router. मेरा खुद का ऑफिस का राउटर है. इससे मेरे जो नेटवर्क कनेक्टेड है वन मेरे ऑफिस में जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 वाला चल रहा है. दैट इज माय नेटवर्क. ठीक है, दैट इज माय लोकल एरिया नेटवर्क. इट्स LAN. Okay, it's LAN. Then R1 and R2. There are two. The second router is R2. हो सकता है second router. Let's say that I'm working in Mansarovar. The second router is in Gopalpura. So definitely there must be a connection between R1 and R2. अगर वहाँ connection नहीं होगा तो how could we communicate to the 192.168.3.0, the second network, PC number 2. I want to communicate between PC1 and PC2. So for that I have to make it sure that there must be a connection. It could be a physical, it could be a wired or wireless. Okay, so there must be a connection, definitely. So I can simply see this, that here we have the connection. This is the connection. This is another type of cable that is using right now. The name you can see this. This is DCEN, but it is known as serial cable. This cable is known as serial cable. So guys, there are two type of cable that has been discussed now. The first one is twisted pair cable, and in twisted pair cable we have seen two type of cables, the crossover and straight through cables. So I hope that all of you remember this two types of cables, crossover and straight through. Crossover is a cable that is used to connect between same devices, and straight through cable is used to connect different devices. For example, if I want to make a connection between switch and router, I will use a straight through. PC and switch, I will use a straight through. PC and router, I will use a straight through. Okay, so that is what we are saying. Okay, if I'm using two same device and I want to if I'm using a twisted pair cables to connect between two same device, I will use the crossover cable. यहाँ पर ध्यान रखिएगा guys, there is a cable that has been used in this diagram, and that the cable name is serial cable. We will come on this later, but yes, अगर मैंने सीरियल केबल इस्तेमाल नहीं करनी, मेरे पास तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही हैं, तो मैं कौन सी केबल इस्तेमाल करूंगा? दोनों राउटर्स के बीच क्रॉसओवर केबल्स इस्तेमाल करने वाला. दैट्स द थिंग. यहाँ पर मेरे पास तीन तीन नेटवर्क्स हैं. एक नेटवर्क किसी और कंपनी का लोकल है, एक नेटवर्क मेरी कंपनी का लोकल है, और एक नेटवर्क इन दोनों राउटर्स के बीच में काम कर रहा है. गाइस रिमेंबर वन थिंग, router has a rule that states that there cannot be a single network assigned on more than one interface of a router. यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि एक राउटर के दो इंटरफेस पे जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूं R1 के दो इंटरफेस यूज में आ रहे हैं. FA0/0 एक इंटरफेस मेरे पास है, ये वाला. ठीक है, और एक इंटरफेस मेरे पास है सीरियल 0/0/0. these two interface cannot have same network, guys. For example, you can see this, that what IP address we gave to this interface, 192.168.1.1. Okay, I cannot use this same network to assign its another interface. I cannot assign the same network to its another interface. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. That's why I used the second one. Okay, guys, getting me or not? वेरी सिंपल फॉर्म कंसेप्ट है कि मैं एक राउटर के दो या मतलब एक से ज़्यादा इंटरफेस पे सेम नेटवर्क नहीं रख सकता. दैट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज इफ we are using a router to connect the same network, that is not the requirement of router. We use the router to communicate between different networks.
We didn't use the router to make a communication between same networks. We use the router to make a communication between different networks. So that is the reason. This is the routing table in this show IP route command. I can clearly see that it underline the term static, and it show me the network on router 1 R1. Okay, as we all discussed about the local network, so local network तो मेरे router से दो network है जो directly connected थे। R1 की मैं बात कर रहा हूँ 192.168.1.0/24 है पहला network, और R1 पे दूसरा जो network है वो है 192.168.2.0/24, क्योंकि router के इस इंटरफेस पर ये नेटवर्क लगा हुआ लाइक 2.1 और इस तरफ 2.2, तो दोनों राउटर सेम नेटवर्क में है तो बात करेंगे। ये राउटर इस डिवाइस से सेम नेटवर्क में है तो बात करेंगे, ये राउटर इस डिवाइस से सेम नेटवर्क में है तो बात करेंगे। अगर ये एक दूसरे से करेंगे तो फिर एक दूसरे की कर रहे हैं बातचीत। तो इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। तो इस राउटर से क्या ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है? हमने कहा जी नहीं सर, ये नेटवर्क तो R2 से कनेक्टेड है और R2 मुझसे कनेक्टेड है। So a network that is not directly connected to my router interface, that network known as remote network. Guys, remember, a network that is not directly connected to my router known as a remote network. And the second important thing is the remote network is not listed in my routing table. So the routing that we are going to do, because of why we are doing the routing, we are doing the routing for saying because we want to add the remote network, the network that is not directly connected to my router, that network is going to be added in my routing table, क्योंकि उसकी information नहीं होगी। routing table basically have the information of only directly connected networks. If I want to add some routes, मुझे नहीं पता, मेरे पास 192.168.3.0 वाला नेटवर्क R1 को नहीं पता है, it doesn't have the idea about 192.168.3.0, इस नेटवर्क को मुझे ऐड करने के लिए राउटिंग करना पड़ेगा, because the local networks is very well known, is listed in the routing table. There is no need to worry about it. We have to focus on remote networks because those networks are not directly connected to my router. So we will do routing for the remote network. And अगर हम लोग, if I can come to the R2, let's look at this R2, 192.168.3.0 is a local network for R2 because this network is directly connected to R2 interface. The interface is fast Ethernet 0/0. We can clearly see that this is the interface that is directly connected. You can see this that FA 0/0/0 uh, has the IP address of this. So this is a local network for R2, and the another local network for R2 is 192.168.2.0 because 2.2, this is the IP address 2.2. Yes, this is IP address that has been assigned to serial interface 0/0/0. Yes, that is a local interface for R2. So that IP address that has been assigned on serial interface 0/0/0 will be the local network or for R2. So remote network क्या है R2 के लिए सर 192.168.1.0, क्योंकि वो network R1 से connected है और फिर R1 R2 से connected है। A network that is not directly connected to R2 is known as a local network, a remote network. That's it. That's the simple. There are two type of network that is going to be that is going to be mentioned in my routing table: remote network and local network. So guys, I hope that all of you get the idea about remote and local network. So um, we will move further. I'll show you that how it works. Routing table structure. Okay, static routes in the routing table. The static route basically, guys, we have discussed this, that there are two type of routing we are going to discuss. The first one is static routing and the second one is dynamic routing. So static routing means we will add the remote networks
we will add the remote networks by adding them manually in my routers. मैं मेरे राउटर में मेरे जो रिमोट नेटवर्क है, जैसे मेरे R1 के लिए 192.168.3.0 एक रिमोट नेटवर्क था, मैं उसे मैनुअली ऐड करने वाला हूँ खुद से। आई विल राइट द कमांड, so the manual addition of a remote network is the process that has been known as the static routing. Okay, so yes, that is the process. Okay, uh, denoted with the code S of how can we identify, that ये मेरा static root है या फिर ये मेरा कौन सा root है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, I'll simply see the code that is S in the routing table. I'll show you all of these things that is deciding that is given in this uh, sheet. I'll show you. Routing table must contain directly connected network used to connect remote network. Okay, remember this thing. A routing table must have the local network because उन्हीं local network की वजह से ही मुझे remote network मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे वो remote network तभी मिल सकते हैं। When to use static routes? Because when to use static routes, when networks only consist of a few routers. जब networks में कुछ routers हों, network is connected to internet only through one ISP. If network is connected to internet only through one ISP, let's say that my router has a single network internet connection, I can use this static routing in my router or in the next one. Hub and spoke technology is used on a large network. लार्ज नेटवर्क्स में स्टैटिक रूट्स नहीं चलते हैं बिकॉज इट इज नॉट a good idea to adding a lot of networks manually. अच्छा, मान लीजिए कि रिमोट नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा एक टोपोलॉजी मेरा चल रहा है जिसके अंदर 70 नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, 70 नेटवर्क्स। सो इन दिस टाइम मेरे एक राउटर से हो सकता है 3 नेटवर्क कनेक्टेड हो लोकल, बाकी बचे हुए 67 नेटवर्क्स रिमोट नेटवर्क्स हैं, और वो मैं अगर मैन्युअली ऐड करने लगा, it will consume a lot of time, and in this network industry we do not have that. The only thing is we do not have this time. So yes, hub and spoke, that means, and hub and spoke topology is used on a large network, means a large network will work as they will simply ask, okay guys, do you have your routing table? How many networks do you have in your routing table? Okay, let me share my one, and let me ask you to share your table too. दोनों एक दूसरे से टेबल शेयर कर लेते हैं, and that is the process known as dynamic routing basically. डायनेमिक राउटिंग में यही चलता है कि वो हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टोपोलॉजी का, जिसके अंदर राउटिंग केबल एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो वही देखो, मेरे पास जो एग्जांपल था पहले, अपने पास जो एग्जांपल था, वो जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो यू कैन सिंपली सी द एग्जांपल। This is for R1. We are working on R1, right? You can see this R1 show IP route command has been used. S is a code for static, and I can see this that S is a code for static. C is connected. C is directly connected the networks. So 192.168.1.0 is directly connected to fast Ethernet 0/0 for R1. Fast Ethernet 0/0 has a connection with the 192.168.1.0, बिकॉज ये जो इंटरफेस है ना, ये वाला जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर एक डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.1.0। सीरियल इंटरफेस पर मेरे पास 192.168.2.0 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। यू कैन सिंपली सी दिस लाइन 192.168.2.0 is directly connected to serial interface. Okay, no problem. And this network 192.168.3.0, this network is a remote network basically because this network is directly connected to R2.
So definitely this is not directly connected to R1. So that network is known as a remote network for R1, okay. So yes, we have to add that network manually. We will see how to add the network, okay. So static routing has done. So S is the code that is used to show the route whether कैसे मैंने उस route को मेरे routing table में add हुआ है. Doesn't, I mean, it could be added by using a routing protocol, dynamic routing protocol, or it could be by a default by a static routing. So static routing से add हो सकता है, dynamic routing से add हो सकता है. So we have to see कि कौन से routing protocol से वो add है, बस वो हमें देखना है. ठीक है, तो वो हमें कोड कहाँ मिलेगा. एस विल डिनोट द आइडिया, एस विल गिव यू द आइडिया कि कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड है. एस, ओके, स्टैटिक. सो यस, वी विल continue. Routing table structure, dynamic routing protocol we have used to add a remote network to a routing table. Basically, we all are doing the routing only to add the remote network. Add are used to discover networks. Dynamic routing protocols are basically used to discover the networks. We are not going to add them manually, guys. Remote networks are not added manually in dynamic routing, because dynamic routing में क्या होता है, networks discover किए जाते हैं. And dynamic routing protocol is used to update and maintain routing tables, and that particular protocols are used to update and maintain routing tables. In this, we will not going to update the networks by myself. That updation and the maintaining of routing table will be done by the routers itself. हो सकता है दो राउटर मेरे नेटवर्क में है, मेरी टोपोलॉजी डायग्राम में 4 राउटर्स हैं. वो चारों राउटर, इफ आई एम यूजिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, कौन से इंफॉर्मेशन, अबाउट द रूट्स, अबाउट द नेटवर्क्स. So that information is going to be shared by the 4 routers to each other directly, automatically. Okay. We are not going to add the remote networks. That is none of our business. We are going to do the routing, the dynamic routing, and the left process, the process of adding the remote network will be done by the router itself. Automatic network discovery. Routers are able to discover new network by sharing routing table information. Guys, we got the line. Routers are able to discover new networks by sharing routing table information. That's the idea. Okay, so yes, that's the routing table. Routing table structure, as we all know, maintaining routing tables. Dynamic routing protocols are used to share routing information with other routers to maintain and update their own routing table. Guys, remember this thing कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, मेरे जो राउटर्स हैं R1 और R2, दो राउटर्स थे, दोनों राउटर्स के पास एक एक रिमोट नेटवर्क था एक दूसरे के लिए. सो दीज रिमोट नेटवर्क्स विल डायरेक्टली शेयरेबल by using the R1 and R2. We are not going to do the action for them. They will maintain and update their own routing table. Let's say मेरे पास एक नया नेटवर्क और ऐड हो गया है मेरे राउटर से, so that information will also be updated by the router automatically. We are not going to inform the router that please update the new network. हो सकता है in this diagram you can see that there is one another network that has been added to R2. So that network will automatically updated in my routing table without any interruption. Okay, so that is the beauty of dynamic routing protocols that allow to the routers to maintain and update their own routing table. So that's the concept of dynamic routing protocol. There are some protocols that are in use. RIP protocol, we have routing information protocol. IGRP, interior gateway routing protocol, that is not longer in use. EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yes, that is very important protocol for us on the perspective of CCNA and CCNP. OSPF is the widely used dynamic routing protocol. That is very important and very common protocol that is in use. Guys,
IS routing protocol, that is not so famous and not so familiar with not so in trend actually. And BGP routing protocol, that is a routing protocol that is basically working for our internet actually. Guys, our internet is working because of BGP. Okay, so these are the routing protocols that are going to be discussed by us. So yes, we will discuss all of them. एंड राउटिंग टेबल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था तीन हमें प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने राउटिंग टेबल के अंदर। वो तीन प्रिंसिपल्स क्या हैं? तीन कौन से हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं? देखो, एवरी राउटर मेक्स इट्स डिसीजन अलोन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मैंने कहा कि सर मेरे एक राउटर से दूसरे एक 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 पीसी से दूसरे पीसी जो कि किसी और नेटवर्क में, वहाँ जाने के तीन रास्ते हैं। तीनों में से बेस्ट कौन सा है? दिस decision will be done by the router itself. It will not ask help from any other router. Remember this one. Based on the information it has in its routing table, it will take the decision without discussing to any other router. ये अपने आप डिसीजन लेगा, किसी और राउटर से नहीं पूछने वाला। ऐसा नहीं है R1 से पूछेगा भाई यार मेरे पास एक रास्ता और है, तू बता मैं इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ। नो, इट विल नॉट गेट द आइडिया फ्रॉम एनी अदर राउटर। द डिसीजन विल बी डन बाय इटसेल्फ। डिफरेंट राउटिंग टेबल में कंटेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। इफ R1 की बात करूं तो R1 की राउटिंग टेबल विल मेंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। R2 की राउटिंग टेबल में अपनी इन्फॉर्मेशन होंगी और R3 में अपनी होंगी। R2 के लिए जो लोकल नेटवर्क है वो R1 के लिए रिमोट हो सकता है, जो R3 के लिए लोकल नेटवर्क है वो R2 के लिए रिमोट हो सकता है। तो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होने वाली है डेफिनेटली। A routing table can tell how to get to a destination but not how to get back. Yes, एक राउटर की राउटिंग टेबल, जैसे R1 की टेबल की बात करूं तो R1 की टेबल में मुझे ये मिल सकता है कि मेरा नेटवर्क कनेक्शन मुझे कैसे करना है, मतलब मेरे को जाना कैसे, डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, वापस आने के लिए मुझे वो इन्फॉर्मेशन उधर से आने वाले राउटर से मिलनी चाहिए। मतलब जिस राउटर के जिस रास्ते में गया उस रास्ते ही मुझे इन्फॉर्मेशन आगे से मिलेगी। यहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के लिए नहीं मिल सकती। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यस, फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट भी स्लाइड भी है। Effect of free routing table principle. Packets are forwarded through the network from one router to another on a hop by hop basis. Remember this thing. Packet can take path X to destination but return via path Y. Asymmetric routing. Okay, there is a conceptual diagram we have. For example, now PC1 or PC2 we have and PC3 also. If PC1 wants to connect with PC3, there is more than two paths to reach the destination, guys। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं that we have different path to reach at the destination basically। So yes, the destination path is basically cleared। सर या तो मेरे पास ये रास्ता है, मैं इस रास्ते से जाऊँ, या सर हो सकता है मैं इस रास्ते से जाऊँ, या हो सकता है सर मैं ऐसे जाऊँ, या हो सकता है सर मैं ऐसे होकर के फिर ऐसे होकर के फिर ऐसे जाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ वेज। मेरे को साफ साफ दिख रहा है मेरे पास कितने रास्ते हैं। मैंने कहा जी साहब हो सकता है मेरा पैकेट यहाँ से जब निकला PC2 से PC3 को बात करने के लिए तो वो इस रास्ते से निकला। जब मुझे रिप्लाई आया, व्हेन आई गॉट द रिप्लाई, इट कुड बी कि वो रिप्लाई मेरे पास इस रास्ते से आया हो, दैट इज नॉन एसिमेट्रिक राउटिंग। और अगर दी डेस्टिनेशन पे जिस पाथ से मेरा राउटर गया है, मेरा पैकेट गया है, उसी पाथ से अगर वो वापस आ रहा है तो वो सिमेट्रिक राउटिंग आता है। पैकेट्स आर फॉरवर्डेड थ्रू द नेटवर्क फ्रॉम वन राउटर टू अनदर ऑन अ होप बाय होप बेसिस। होप दैट मीन्स राउटर। देखिए कैसे, यहाँ से मेरा पैकेट निकला इस राउटर, ऑब्वियसली ये मेरा स्विच है, स्विच से मेरे पास PC1 PC2 कनेक्टेड है, यहाँ से मेरे राउटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेट्स से जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, तो वी कैन क्लियरली सी पैकेट यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद देखा
कि सर यहाँ जाने के मेरे पास ना दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर से जाऊँ या मैं इधर से जाऊँ। अब हो सकता है इनमें से कोई एक रास्ता मेरा बेस्ट हो, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इस राउटर पे डिपेंड कर रहा है। इस राउटर ने कहा साहब ये रास्ता अच्छा है, यहाँ से जाइए, ये रास्ता बेटर है, यहाँ से जाओ आप। हमने कहा कि ठीक है, राउटर कह रहा है तो उसने कैलकुलेशन करके दिया है अपने को, तो प्रॉब्लम नहीं है। इस राउटर पर पहुंचे तो इसने कहा कि सर यहाँ जाने के मेरे पास ना तीन रास्ते हैं सर, एक तो ऐसे जा सकते हो आप, एक ऐसे जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो, लेट्स कैलकुलेट कौन सा रास्ता बेटर होगा। हमने कहा सब ऐसे ही करके देखते हैं, तो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। तो राउटर ने कहा कि सर ये रास्ता इजी है, सबसे सबसे बेस्ट रास्ता, बेस्ट रूट कौन सा है इन तीनों रास्तों में? सर ये वाला है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम इस पैकेट इस राउटर पे जाएंगे। देन दिस राउटर विल डिसाइड कि ऐसे होके जाना है इस पीछे तक या ऐसे होके, क्योंकि मेरे पास दो रास्ते हैं अभी, स्टिल आई हैव टू पास, दिस वन एंड दिस वन। इसने कहा सर इस बात पे जो मैट्रिक्स इसने कैलकुलेट की है, फिर जो भी किया इसने बोला कि सर यहाँ तो दो राउटर्स मिल रहे हैं, यहाँ एक राउटर, सर इधर से चलते हैं ये वाला। सो दी important point is the packet are forwarded through the network from one router to another on a hop by hop basis. It is not pre-decided which path is going to be taken. मेरे को यहाँ इस राउटर पे नहीं पता है कि मैं इस रास्ते होके जाऊंगा कि इस होके जाऊंगा, that is decided by the next hop. So that is important line that we have to notice कि यहाँ पर मुझे ये नहीं पता है कि मेरा रास्ता कौन सा होने वाला है, वो मेरे राउटर्स डिसाइड करने वाले हैं कौन सा रास्ता मैं यूज करूँ कौन सा नहीं करूँ। ठीक है, तो ये समझ आया। अब हम आगे चलते हैं। राउटर्स पाथ एंड पैकेट स्विचिंग। ओके, राउटर पाथ की हम बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि बेटर पाथ क्या है? तो हमने कहा था कि सब मैट्रिक एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। So metric is a numerical value used by routing protocols that help to determine the best path to a destination. If I want to determine the best path to a destination, I have to calculate the metrics of that path. मैट्रिक्स जितनी कम होगी, मैट्रिक्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है। मैंने कहा जी इस रास्ते होके जा रहा हूँ मैं, तो लेट्स से मैंने कहा जी साहब ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते होके जाता हूँ तो मेरी मैट्रिक्स है 20 फॉर एग्जाम्पल, और इस रास्ते होके जा रहा हूँ तो मेरी मैट्रिक्स है 40। तो मेरे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा, बेस्ट रूट कौन सा? सर ये है मेरा बेस्ट रूट। तो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय दिस statement, that the smaller the matrix value, the better the path. Two type of metrics used by routing protocol are hop count and bandwidth। हॉप काउंट का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि मेरे पीसी 1 से पीसी 2 तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते दिख रहे हैं। मेरे आर वन पे बैठ करके मैं देखता हूँ तो मेरा एक रास्ता तो ये है कि मैं सीधा आर वन से आर थ्री पे जा करके फिर बात कर लूँ। एक रास्ता कहता है सर आर वन से आर टू पे जाऊँ, आर टू से फिर आर थ्री और आर थ्री से फिर वहाँ पहुँचूँ। तो यस, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है सर? देर आर टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स यूज बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। The first is hop count. This is the number of routers a packet must travel through to get to its destination. That's we have discussed it earlier. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है सर। हॉप काउंट का मतलब ये होता है बीच में कितने राउटर पड़ रहे हैं। इस हिसाब से तो मेरा रास्ता कौन सा बेटर है सर? आर वन और आर थ्री होते हुए। दूसरा कहता है साहब बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मीन्स द स्पीड ऑफ अ लिंक, ऑल्सो नोन एज डेटा कैपेसिटी ऑफ अ लिंक। उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग बेस्ट पाथ निकालते हैं। तो हमने देखा कि सर आर वन और आर थ्री के बीच में नंबर ऑफ हॉप काउंट तो ठीक है, एक ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ इस केबल की जो स्पीड है 56 kbps से बहुत कम है। टी वन जो है वो हायर रेंज होती है, तो यहाँ पर बैंडविड्थ या स्पीड हम कहें तो T1 की ज़्यादा है 56 kbps से। तो वी विल गो थ्रू T1 एंड T1, वी विल गो थ्रू R1 टू R2 एंड R2 टू R3, और फिर हम PC2 से बात करेंगे। तो ये डिसाइडेशन कहाँ से हुआ? अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ। अकॉर्डिंग टू हॉप काउंट मेरा R1 R3 वाला रास्ता बेहतर है, और अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ मेरा R1 R2 और R3 वाला रास्ता बेहतर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, हमने अभी पीछे कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम पढ़े हैं, रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, आईजीआरपी, बीजीपी, इनमें से कोई भी राउटर दो या तीन टाइप की मैट्रिक्स से कैलकुलेट नहीं करता है बेस्ट फूड के बारे में। मतलब एक राउटर, एक कोई भी प्रोटोकॉल ये नहीं कहेगा सर मेरे को तो हॉप काउंट से भी पता करके बताओ, मेरे को तो बैंडविड्थ से पता करके बताओ, दोनों से मैट्रिक्स अलग अलग निकालो, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स से फिर कैसे करेंगे। तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एक मैट्रिक्स वैल्यू निकालता है। इट कुड बी हॉप काउंट, इट्स रिप जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट रिप बेसिकली यूज दी हॉप काउंट कंसेप्ट। ओके, तो रिप हमेशा हॉप काउंट पे काम करेगा। रिप कोई बैंडविड्थ को लेकर के कैलकुलेट करके नहीं देने वाला कि सर जरा बैंडविड्थ चेक करो ना किसका कम है तो उसी रास्ते से भेजते हैं, नहीं। रिप विल वर्क ऑन हॉप काउंट, डजंट मैटर। अभी हॉप काउंट के हिसाब से देखें तो सर इसके बैंडविड्थ कम है तो डेटा स्लो प्रोसेस होगा, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो राउटर तो कम है, हम उसी से भेजेंगे, डजंट मैटर। इधर मैंने 100 Mbps की केबल भी लगा देनी है ना तो भी वो R1 से R3 होके ही जाएगा, बिकॉज वो हॉप काउंट पे काम करता है। दैट्स दी कंसेप्ट एक्चुअली। ठीक है, एंड नेक्स्ट, equal cost matrix in a condition where a router has multiple paths to the same destination that all have the same matrix। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि भाई मेरे एक राउटर से मेरे एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको दो रास्ते नजर आते हैं। PC1 और PC2 के बीच में कम्युनिकेशन करवाना चाहें तो मुझे यहाँ पर दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक रास्ता जो मुझे कहता है, बोला कि सब इधर से जाइए, सब एक रास्ता तो ये जा रहा है, एक रास्ता सब ये जा रहा है। और हमने देखा कि सर दोनों के बीच में नंबर ऑफ कनेक्शन जो हम लोग देखें बच्चा हॉप काउंट पे काम करते हैं। हॉप काउंट पे देखो जरा, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ पे भी बीच में एक राउटर है, यहाँ से यहाँ पे बीच में एक राउटर है, तो मतलब दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना, मैट्रिक्स सेम निकल के आएगी। तो अगर इक्वल कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर मेरे राउटर के पास मल्टीपल पाथ हो एक ही जगह पहुंचने के, एक से ज्यादा रास्ते हो और सभी रास्तों की मैट्रिक्स जो है वो सेम आने वाली हो, ऐसे केस में राउटर क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर देता है। मतलब पैकेट्स को ना इक्वली डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बोला कि सब आधे पैकेट तो इधर से भेज दो, आधे इधर से भेज दो, क्यों किसी एक पे बर्डन डालें, क्योंकि सबके रास्ते तो सेम है। हाँ, अगर यहाँ ये होता कि सर यहाँ पर एक राउटर और एडेड होता, अगर ये होता तो वो इधर से ही भेजता, तो वो इसी रास्ते को अपनाता, यही रास्ता इसके काम आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले कितना भी लोड हो वो इसी रास्ते भेजेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर अनइक्वल लोड हो गया है, अनइक्वल मैट्रिक्स आ गई हैं दोनों कंडीशन में। ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं, इफ आई हैव मल्टीपल पाथ्स टू रीच to a destination and if all the path have same matrix value, ध्यान ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स सर एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं बेस्ट पाथ चूज करने के लिए। अच्छा सर मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे की जाती है, सर इट कुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू हॉप काउंट, इट कुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ। तो यस, हम हॉप काउंट या बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर हमें बैंडविड्थ, हम यहाँ पे हॉप काउंट का इस्तेमाल करें तो भी मैंने देखा कि दोनों रास्ते बराबर हैं। अगर मैं बैंडविड्थ का इस्तेमाल करूँ तो चारों जो राउटर्स के बीच में जो चारों कनेक्शन है वो सेम केबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो चारों कनेक्शन की बैंडविड्थ भी सेम होने वाली है। तो हमें क्या दिख रहा है सर, मैट्रिक्स सारे रास्तों की सेम है, तो क्या करें सर, हम इन दोनों रास्तों का क्या करेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल लोड बैलेंसिंग कर देंगे, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर देंगे। मतलब दिस मीन्स द राउटर सेंड्स पैकेट ओवर द मल्टीपल एग्जिट इंटरफेस लिस्टेड इन द राउटिंग टेबल। इस राउटर के पास यहाँ पहुंचने के दो रास्ते नजर आ रहे थे, एक था ये, एक था ये। इस राउटर ने दोनों रास्तों पर पैकेट्स को फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज नोन एज इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग। ये इसने अपने हिसाब से कर दिया। ठीक है, so yes, that is we have in our class, and
कल से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। आज 7 o'clock थी, कल से वही 5 o'clock ही रहेंगी। ठीक है। और हम लोग इसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कल हमारा ये कंप्लीट होगा, मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, तो कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। हेलो। सर वो वीडियोस का कुछ। हाँ, वो लिंक चल रहे हैं मेरे पास, अपलोड हो रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरे पास यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, तो मैंने क्या 3-4 जो वीडियोस थे वो अपलोड एक साथ ही किए हुए हैं, तो वो बस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे एक साथ, वैसे ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब जैसे ही ठीक है सर। टोटली अपलोड नहीं रहे, सारे एक साथ हो रहे हैं, जैसे होता है मैं फॉरवर्ड ठीक कर है दूंगा। सर, एक हाँ हाँ। ये प्रेजेंटेशन एक शेयर करेंगे क्या आप व्हाट्सएप पे ये मेरे को? डॉक्यूमेंट, हाँ मैं हाँ, आज ये ये डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट भी मैं कोशिश करता हूँ आपको फॉरवर्ड कर दूँ। आज मैं ग्रुप में मैं इसे शेयर करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ओके।